এফসিআর মাধ্যমে প্রকল্পন হয় ত্রিপুরাতে 1 লাখ মেট্রিক টন পর্যন্ত ধান ত্রিপুরা সরকার কিনেছে। ভর্তুকি দিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে কেনে। মিলিং এর ভর্তুকি 7 থেকে 9 কোটি টাকা ত্রিপুরা সরকার দেয়। পুরনো সরকার 9 কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়ে কৃষকের কাছ থেকে এফসিআর মাধ্যমে প্রকল্পন করায়নি। আজ এফসিআর মাধ্যমে প্রকল্পন করাতে মোটায় তো ধানের কিলো কত ধানের কিলো 19 টাকা 20 টাকা, তার নিচে ধান কৃষকরা বিক্রি করে না। আর 2018 আগে ধান 10 টাকা 12 টাকা 13 টাকার উপরে কোন কৃষক বিক্রি করতে পারেনি। বন্ধু, এই যে 19 থেকে 20 22 থেকে 22 পর্যন্ত 5 কিলো দিয়েছে এবং সেই চাল আবার কৃষকদের কাছে রেশন শপের মাধ্যমে চলে আসে খাওয়ার জন্য। বন্ধু, নিজের চাউলই নিজের ধান ক্ষেতের ধান আবার আপনারা চাউল করে খেতে পারেন, তার ব্যবস্থা মোদী সরকার এখানে করেছে। মোদী আর এখানে আপনাদের সবার প্রচেষ্টা 2018-তে আমি মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে কাজ করা শুরু করেছি। বন্ধুরা, আমরা যদি একটু পেছনে যাই তো ত্রিপুরাতে একদলীয় ব্যবস্থা ছিল, একদলীয় ব্যবস্থা। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর পাবে তো বিশেষ সত্তাসীন দলের লোকেরাই পাবে, অন্য পাবে না। ত্রিপুরার মানুষ এই ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছিল। এটাই বুঝি সরকারি ব্যবস্থা, এটা সরকারি ব্যবস্থা না। মোদী 2014 থেকে বলছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, सबका साथ सबका विश्वास और सबका साथ सबका प्रयास। 2014-তে এখানে ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সরকার ছিল না, 15 তো ছিল না, 16 তো নয়, 17 তো নয়, 18-তে মোদীর 3 মন্ত্র ত্রিপুরাতে আসছিল না। 45 বছরের এখানে লাগাতার বিধায়ক কি মতো মায়ের রেশন শপের মধ্যে চাউল, কেরোসিন তেল, লবণ, চিনি দিত। কেন্দ্র সরকার ভর্তুকি দিত, তার জন্য দিত। যখন কেন্দ্র সরকার ভর্তুকি বন্ধ করে দিয়েছে 2017-তে মোটাই তো আন্দোলন করেছে কেন্দ্র সরকার, চিনি বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের পূজার সময়, ঈদের সময় দেখো মোদী চিনি বন্ধ করে দিয়েছে, তার জন্য চিনি দিতে পারছি না, ত্রিপুরার মানুষকে তাকিয়ে রাস্তায় নামিয়েছে। কিন্তু এই সরকার, এখনো কেন্দ্র সরকার ভর্তুকি চিনিতে দেয় না, কিন্তু এই সরকার চিনি আপনাদেরকে রেশনে দেয়। তারও দিতে পারত, কিন্তু ওই যে তাকিয়ে তোলা, মানুষকে খেপিয়ে তোলা, খেপিয়ে তোলে রাজনীতি করা, মিথ্যে কথা বলা, সেগুলো করে রাজনৈতিক ফায়দা উঠানোর জন্য। আর আজকে রেশন সময় শুধু চিনি পাওয়া যায়, চাউল পাওয়া যায়, চিনি পাওয়া যায়, লবণ পাওয়া যায়, কেরোসিন তেল পাওয়া যায়, সরষের তেল পাওয়া যায়, চা পাতা পাওয়া যায়, মশলা পাওয়া যায়, সাবান পাওয়া যায়, সুজি পাওয়া যায়, ময়দা পাওয়া যায়, আটা পাওয়া যায়। সেলফ হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে বোনেরা যে সামগ্রী তৈরি করেন সেগুলো বিক্রি করার অধিকার রেশন শপের মধ্যে লোকাল ভোকাল দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগে পাওয়া যেত, তারপর মুসুর ডাল পাওয়া যায়, লাল ডাল মুসুর ডাল পাওয়া যায়, আগে পাওয়া যেত রেশন শপ। আমাকে বলুন তো, কেউ আন্দোলন করেছে যে রেশন শপে এতগুলো জিনিস দিতে হবে? রেশন শপে সোয়াবিনও পাওয়া যায়, আমি কত বলবো, দিতে হবে কেন? 14-তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসার পর সবকা সাথ সবকা বিকাশ ত্রিপুরাতে লাগু কেন হয়নি? 5 বছরে 48,000 ঘর কেন এসছে? এখন কিভাবে 4 বছরে 2,35,000 ঘর ছাড়ার জন্য আসতে পারে? সেটা আগে কেন হয়নি? তার জবাব কে দেবে? চাইবে মানুষ। আজকে মানুষ সিপিএম ছেড়ে দিচ্ছে, কেন করেছে? কি কারণে করবে?
মানুষ তো একটা পার্টি করবে, তার কারণ তো হবে, মতাদর্শ, কর্মপদ্ধতি, কর্মপন্থা, কর্মোন্নয়ন, সবগুলো ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে রয়েছে। আজকে যে ভারতীয় জনতা পার্টি না করে তার কাছে ঘর চলে যায়, যে ভারতীয় পার্টি না করে, ভারতীয় জনতা পার্টি না করে তার কাছে কোভিডের সময় 1000 টাকা করে অ্যাকাউন্টে চলে যায় টিভির মাধ্যমে, যে ভারতীয় জনতা পার্টি না করে কোভিডের সময় 1000 টাকার খাদ্য দ্রব্যাদি তার বাড়িতে পৌঁছে যায়, যদি ভারতীয় জনতা পার্টি না করে তো ইউপিডিএস সিস্টেম লাগু করা হয়ে গেছে, রেশন শপগুলোর মধ্যে ওয়ান কার্ড ওয়ান নেশন চালু হয়ে গেছে। আগে রেশন শপগুলোর মধ্যে ওয়ান কার্ড ওয়ান নেশন ছিল না, ইউপিডিএস সিস্টেম ছিল না, ক্যাডাররা নিয়ন্ত্রণ করতেন সেই রেশন শপগুলোর মধ্যে। যদি কেউ নারী সমিতির মিছিলে আমার বোনেরা না গিয়েছে তো তখন তার রেশন কার্ডটা আটকে রাখে, তুমি আজকে রেশন পাবে না কারণ তুমি মিছিলে যাওনি, এটা করার ব্যবস্থা ছিল। আজকে আমার কোনো বোনকে যদি কোনো রেশন শপের ডিলার আটকায় তো সে অন্য দোকান থেকে নিয়ে নেবে, কারণ ওয়ান কার্ড ওয়ান নেশন চালু হয়ে গেছে। শুধু মতাইল রেশন কার্ড রেশন শপ থেকে নেই, তামিলনাড়ুর রেশন শপ থেকেও এখানে মতাইল মহিলাদের চাউল তুলতে পারে, তার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আমি যখন বেরোতাম 2018 আগে, তো আগরতলা থেকে যদি মতাইতে আসতাম বিশ্বমুখে, বিকেলের দিকে সমস্ত বাজারের সামনে নিয়ে একটা লাইন, সিঙ্গেল লাইন চলত, মহিলারা নারী সমিতির মিছিল চলছে, 20টা মিছিল সামনে করতে মিনিমাম বিকেলের দিকে 20টা মিছিল কমসে কম এই মতাইল পর্যন্ত আসতে গেলে বিকেলের দিকে। আজকে মহিলাদেরকে মিছিলে যেতে হয়েছে, আন্দোলন করতে হয়েছে, বিনা আন্দোলনে এই সরকার সিদ্ধান্ত করেছে 33% রিজার্ভেশন সরকারি চাকরির সুবিধার মধ্যে মহিলাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে। তার ব্যবস্থা এই সরকার করেছে। কোন মহিলাকে আন্দোলন করতে হয়নি, কোন মহিলাকে রাস্তায় নেমে তার জন্য ধর্ণা দিতে হয়নি, এই সরকার আপনি আপ করেছে। আর কিন্তু সেই জায়গা থামেনি, মহিলাদের সশক্তিকরণের জন্য 400 কোটি টাকার প্যাকেজ তার মধ্যে রয়েছে। তার মধ্যে কি কি রয়েছে? তার মধ্যে বড় মাত্রার মহিলা সশক্তিকরণের জন্য ব্যবস্থা এই সরকার করেছে। যেমন রাজ্য সরকারের সমস্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লিঙ্গ অনুপাতে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা, তার মানে चावल रहेगा, रोटी रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिशा में काम किया है और कोरोना की स्थिति में भी देश को पीछे जाने नहीं दिया। यहाँ विद्यार्थियों में किस किस का टीकाकरण हो गया? चलो भाई, किस किस का हो गया जरा टीकाकरण हाथ उठा। तो मैं कहता हूं आप लोगों का नसीब अच्छा है, जब मोदी सरकार है, त्रिपुरा में भी वही सरकार है, तो अगले 25 साल में त्रिपुरा कहां कहां जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करेगा, एजुकेशन में क्या करेगा, ह्यूमन रिसोर्स में क्या करेगा, कंप्यूटर में क्या करेगा, आईटी में क्या करेगा, स्टार्टअप में क्या करेगा, इस सब हमने रूपरेखा 25 साल तक तैयार करके आपके सामने रख दिया है। आप जरूर उसको पढ़े देखें, तब आपको भविष्य चुनने में सहज होगा, क्योंकि आपको सक्सेस उस दिशा में मिल सकता है। मैं आशा करता हूं प्रिंसिपल इंचार्ज देवनाथ है, उनके साथ जो टीम है वो सुचारू रूप से इस सब ये नहीं, मैं कल चावागढ़ियों के बीच में गया था तो उसमें 4 टीएसआर का भी लड़का नौकरी मिला है। पार्टी के कारण से नहीं मिली, उसके काम के कारण से, उसके मेरिट के काम से 4 टीएसआर का भी नौजवान नौकरी मिली है हमें वहां से। कभी नहीं मिलती तेरे सरकारी नौकरी, क्योंकि उनका काम चाय का पत्ता उठाना, यही उनका जीवन भर की ड्यूटी है। किसी ने मेरे सामने आंदोलन नहीं की, किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी। हमने इन चाय बागानियों के लिए बड़े बड़े स्कीम लेके उनके सामने पैकेज रख दिया, जो इनको हम घर देंगे, 2 से 3 घंटा जमीन देंगे, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का घर देंगे, फ्री में शौचालय देंगे, उनके घर के रास्ता बना देंगे, उनको आयुष्मान भारत का 5 लाख का कार्ड देंगे, उनको अंत्योदय कार्ड देंगे, इनको
उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस के चूल्हा देंगे, सौभाग्य योजना के माध्यम से फ्री में उनको बिजली का कनेक्शन देंगे, जल जीवन मिशन, अटल जलधारा के मिशन के माध्यम से उनके घर में फ्री में पानी देंगे। इनके बच्चे को शिक्षा व्यवस्था में आगे लेके जाने के लिए राज्य सरकार भर्ती देंगे, तर व्यवस्था करेंगे। इस सब व्यवस्था हम लोगों ने किया है। आज तक घिसे पीटे एजुकेशन व्यवस्था में रहते और पास करने के बाद धक्का खाते जाते, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जाके किसी राजनीतिक दल के ऑफिस में धक्का खाना पड़ता है। तो ऐसे में भी मेरे त्रिपुरा में ये सरकार आने के बाद ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट नीति आई है। सबसे कमजोर वर्ग जो त्रिपुरा में है वो चाय बागान के श्रमिक लोग हैं, सबसे कमजोर। आज उस कमजोर वर्ग से भी पहली बार एक टीसीएस ऑफिसर बन के आया है त्रिपुरा में इस सरकार आने के बाद, क्योंकि ये सरकार ट्रांसपेरेंट तरीके से टीपीएससी की एग्जाम कराता है। ये दायित्व के साथ मैं कह सकता हूं। इसलिए सबसे कमजोर वर्ग से एक लड़का जिसका माँ बाप चाय बागान में पत्ता उठाता है, घर नहीं है, द्वार नहीं है, गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, उस लड़के टीपीएससी में सिलेक्ट हो गया और टीसीएस ऑफिसर बन के कभी आपके डिस्ट्रिक्ट में भी आके काम करेगा। सुंदर सा प्रांगण है, इतने सुंदर फैकल्टी है और टीचर अभी स्टूडेंट शायद 235 है, 240 हो चुका है। इसमें लड़का शायद 135-40 है, 109 लैब किया है। तो ये जो 240 स्टूडेंट है, मैं सभी को बोलूंगा, टीचर को ही बोलूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आप लोग जरूर देखिए। खाली पढ़ाई लिखा करने से नहीं होता, आपको सब चीज का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जो ट्वीट करता है, मुख्यमंत्री जो ट्वीट करता है, उसमें राज्य और देश का उन्नयन की बात रहती है। तो हमारे स्टूडेंट को देश कहाँ जा रहा है, क्या करने वाले हैं, वो पता होना चाहिए, तभी वो जागरूक स्टूडेंट रहेगा, जागरूक जनता बनेगी और इससे खुद का फायदा होगा। और साथ ही साथ आप त्रिपुरा के रहने वाले लोग हो, त्रिपुरा में 2047 तक मैंने अगले 25 साल में क्या क्या करने वाले उसका भी रूपरेखा हमने तैयार कर लिया है। और माननीय गृह मंत्री जी के हाथों से 50 साल पूर्ण राज्य जब हुई थी, रविंद्र भवन से वर्चुअली अमित भाई शाह जी ने उसका उद्घाटन किया था और उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि त्रिपुरा 25 साल में क्या क्या करने वाले हैं, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, वो स्टूडेंट को जानकारी रहेगा तो स्टूडेंट अपना भविष्य चुन सकता है। जो कहाँ जाने से क्या होगा ये अभी से उनको पता है, तो उनका भविष्य निर्माण में उनको साथ देगा। इसलिए मैं कहता हूँ, हमारे समय तो ये व्यवस्था नहीं थी, हमको मौका नहीं मिली, किंतु तब भी यहाँ तक पहुंची गया। ऊपर वाला का ईश्वर का आशीर्वाद है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, जनता का सर्वोपरि आशीर्वाद है, उस कारण से यहाँ पहुंचे। साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस प्रांगण से धन्यवाद देना चाहता हूं। तो लगभग 36 साल बाद उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की। दुनिया परिवर्तन होता रहता है, तो साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल सिस्टम का हमने परिवर्तन किया, नया बिल लाया। यहाँ जो ठेकेदारी काम करता है, कॉन्ट्रैक्टर एक बिल्डिंग बनाता है, कालगी में न्यू शेड्यूल बनाया, न्यू नियम बनाया। 2011 का शेड्यूल है, उसके बाद 2017 का है, 2018 का है, अब 2021-22 का है। शेड्यूल चेंज होता रहता है, किंतु दुर्भाग्य इस देश की थी, 36 साल से शिक्षा व्यवस्था का कोई परिवर्तन नहीं हुई थी।
और अपने आप हम लोग क्या बोल रहे थे उस समय के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री हो, क्या करेंगे? भारत को शिक्षा में दुनिया के सबसे आगे लेके जाएंगे और पॉलिसी बना के रखे 40 साल पुराना। कंप्यूटर आ गए, गूगल आ चुका, इंटरनेट आ चुका है। आपकी व्यवस्था पुरानी शिक्षा नीति, वोकेशनल क्लासेस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया, शिक्षा के साथ रोजगार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया। आज कोई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ कुछ ना कुछ सीख लेता है, जब निकलेगा कुछ ना कुछ काम करके अपना जीवन चला सकता है। राज्यसभा में विरोध किया है, जो मेन अपोजिशन है केंद्र में, वो लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी की विरोध की है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अकेला लागू नहीं की, अकेला तय नहीं की, इसके लिए वेबसाइट लागू कर दिया, करोड़ों लोगों का राय आया। हर प्रदेश में शिक्षा मंत्री के साथ उस तत्कालीन जो एचआरडी मिनिस्टर थी स्मृति ईरानी जी को भेजा, उन्होंने सबके साथ मीटिंग की, सबके राय ली, एक्सपर्ट का कमेटी बनाया। उसके बाद उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया, वो रिपोर्ट स्टैंडिंग कमेटी के पास गया, स्टैंडिंग कमेटी से राज्यसभा और लोकसभा में पास हुई, तब देश के सामने आया। पूरा व्यवस्था को उन्होंने सुदृढ़ रूप से ताकत के साथ सबको साथ लेके काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। कुछ हो जाता है तो हम लोगों को लगता है अपने आप ये तो होना ही था, सूरज को तो सुबह उठना ही था, चांद को तो 15 दिन बाद आना ही था। किंतु जाइए ना उत्तर में दक्षिण में, क्या आपके यहाँ सुबह 5 बजे 6 बजे 4 बजे सूर्य आ जाता, वहां आती ही क्या? वो तो 6 महीने दिन रहता, 6 महीने रात रहता, वहां तो नहीं आता, वहां तो नहीं आती। इसलिए कोई मान लेता है जो ये सब अपने आप होता तो आना ही था, ऐसा नहीं। क्या होती थी, एमए करो, एमएससी करो, ग्रेजुएशन करो, उसके बाद आप कर्म संस्थान के लिए ढूंढो। आप माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं जो स्किल डेवलपमेंट करो, और क्लासेस से शुरू होती, 11-12 से शुरू हो जाता है, साथ साथ वोकेशनल क्लासेस होती है, जो अपना कोई ना कोई रोजगार का माध्यम उसके साथ जोड़ जाता है। टेक्निकल शिक्षा जिसको बोलता है, उसका व्यवस्था आज एक टेक्निकल व्यवस्था शिक्षा में जो लाया है, आज से 10 साल 15 साल होती तो हम भी कोरिया के साथ टक्कर मार सकते थे, क्योंकि हमारे पास वो व्यवस्था नहीं थी। उस कारण से सबसे बड़े जो माध्यम है, हमारे नौजवान है, उनको जाके ग्रेजुएशन कर लिया, एमए कर लिया, उसके बाद जाकर वो कोई ना कोई टेक्निकल शिक्षा में जाता है, तो कैसे रोजगार करेगा? मेरे पास नहीं बोला, मेरा भी एक संगठन है, उसमें भी महिला होती है, किसी को पता ही नहीं थे। हमने 33% महिला के लिए रिजर्वेशन लाया, किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी, किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी, और उसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं। सब रिजर्वेशन देने से ही महिला आगे चले जाते, ऐसा नहीं होता। एससी एसटी को भी हम रिजर्वेशन देके रखे, किंतु आज भी तो पीछे ही है। रिजर्वेशन के साथ साथ उनके लिए व्यवस्था करना पड़ता है, उस जगह में वो पहुंचे जाए, वो रास्ता गवर्नमेंट को करना पड़ता है। नहीं तो रखेगा रिजर्वेशन, वो बैकलॉग में चलता रहता है, क्योंकि आने वाला नहीं है, वो रास्ता तैयार करना पड़ता है। तो इस सरकार ने उस दिशा में काम किया है, और मैं मानता हूं महिला सशक्तिकरण असलियत में किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। कोरोना की स्थिति में हम लोग गुजरे हैं, और आज भी देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो के चावल माननीय प्रधानमंत्री जी फ्री में देते हैं। सितंबर तक अभी 6 महीने 2 बार बढ़ा दिया। एक समय त्रिपुरा में लोगों के पास कुछ क्राइसिस होती तो खाना नहीं रहते थे,
आज त्रिपुरा के किसी भी प्रांत में कोई नहीं कह सकता है कि मेरे घर में चावल नहीं है, क्योंकि 5 किलो का चावल तो फ्री में मिल ही रहा है। साथ साथ अंत्योदय और बीपीएल प्रायोरिटी हाउस होल्ड का जो 2 रुपया किलो चावल है वो भी मिल रहा है। और मैं देखता हूं इसी में सक्सेस आती है, ये सच्चाई है। उसी में ताकत आता है, उसी में व्यक्तित्व जागता है। हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं तो अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए। मित्रों, त्रिपुरा सरकार ने भी बहुत सारे काम शुरू की है। ये सरकार आने के बाद बहुत सारे काम, सुपर 30, बछड़ बचाओ कार्यक्रम, एनसीईआरटी सिलेबस, विद्या ज्योति, ऐसे बहुत काम त्रिपुरा सरकार ने किया। कम से कम 23 स्कीम एजुकेशन में है, 23 नया स्कीम। ऐसा रेवोल्यूशन, इतना बड़ा चेंजेस त्रिपुरा के शिक्षा व्यवस्था में कभी नहीं की गई। बॉडीज बोलती है स्वाभाविक तौर पे नवोदय विद्यालय में ट्रांसपेरेंट शिक्षा व्यवस्था, और इससे समाज के जो अंतिम व्यक्ति है वहां तक लाभ मिलती है। और इसमें जो पैरामीटर केंद्र सरकार ने बनाया है उस मेरिट के हिसाब से ट्रांसपेरेंट तरीके से हर स्टूडेंट को उनकी अधिकार मिलता है। इस कार्यक्रम में ड्राइविंग सीख लो तब गाड़ी चला, ये गार्जियन का काम है, ये टीचर का काम है। कल पूरे 2 घंटे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वही बात रखा जो कि आपको सकारात्मक दिग के साथ जोड़ता है। और एक बात क्या बोला, अपने को पहचानो, अपने अंदर जो अच्छे गुण है और दूसरे के अंदर जो अच्छे गुण है उसको एडॉप्ट करो। हम लोग जीवन में जब अनसक्सेस होते हैं दूसरों को दोष देते हैं। अनसक्सेस आप अपने कर्म के कारण से होते हो। देखना, बहुत सारे लोग ऐसा होता, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, आप लोगों ने सुना होगा, हर आदमी का कुछ ना कुछ अच्छा ही गुण देता है ईश्वर। उस गुण को निकलना चाहिए, दिखना चाहिए, उसी को ढूंढिए। कुछ लोग होता है सबके अंदर से कमी निकालने की कोशिश करता है, इनके अंदर ये कमी है, उनके अंदर वो कमी है, सब कुछ वही जानता है, सब कुछ वही कर सकता है। ऐसे लोग जीवन में हारता है, संकीर्ण हो जाता है। बाद में छोटे होते होते यहां से शुरू करता है, होते 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 उसके बाद एक समय समाप्त हो जाता है। कमी जब हम देखते हैं दूसरे के अंदर, वो कमी अपने अंदर आके विराज करता है कि आपके मन में, अपने शरीर में बैठ जाता है, अपने कर्म में बैठ जाता है। अब जब सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो सब कुछ आपको अच्छा लगेगा। पहली बार देखा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है और जो कार्यक्रम परिचालित कर रहे थे, कोई टीचर नहीं कर रहे थे, स्टूडेंट ही कर रहा था। वो सबसे बड़ी बात है, टीचर नहीं कर रहा था, स्टूडेंट कर रहा था। ऐसा भारत में मैंने कभी देखा नहीं, ये पहली बार सामने आया। और बहुत अच्छे ढंग से 3-4 स्टूडेंट जो थी, एक लड़का और 2 लड़की थी, और
और साथ साथ एक दो आ रहा था। तो स्टूडेंट ने इस कार्यक्रम को परिचालित की थी सुचारू रूप से, बहुत ही अच्छे ढंग से, कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। और 2 घंटे लगातार इसको परिचालित करना, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने, मोदी के सामने,